Namaste once again. Warm welcome to this webinar. I thank you all for giving me this opportunity to share my insights and help you understand the process of success. Make a complete mental check-in now and tell yourself that you are ready to fully participate in the session. I promise this class is going to give you good value, great value. You can take mental notes and reflect upon them later. And those of you who want to dig deeper, even deeper, I just want you to know this is just a beginning at Neeti. This is just first of the many webinars Neeti will be hosting in the times to come. Stay tuned. I welcome you again in your evolution process for success. I deeply appreciate you understand the importance of investing time, investing money in the process of personal growth of the self. The challenging COVID times, the lockdown period, definitely has given us, most of us, an opportunity to focus on the self and reshuffle the priorities of life. All of us have definitely taken a hit. There is no doubt about it. This is the time for us to renew our strength and energy. This is an opportunity for us to thrive as human beings, to collectively thrive as a nation. I congratulate each one of you for being alive. Yes, I congratulate each one of you for being alive. Come on, give yourself a broad smile. Come on, I repeat, give yourself a broad smile. No, no, no. Please do not give any excuse that you are feeling miserable, you are feeling bored, you are feeling fearful, you are full of anxiety. Why? Because your business has come down. Come on. जान है तो जहान है. ये life है तो life के ऊपर hood है और livelihood है. So give yourself a broad smile. आप जिंदा हैं, आप जीवित हैं. जिंदगी आज भी आप हैं. Still, if smiling is difficult, अगर तब भी आपको लगता है कि मुस्कुराना मुश्किल है, आपको यह बात अभी समझनी होगी. You need to know right now that your own intelligence, your own mind, your own brain has gone against you. आपके अपने विचार, आपकी अपनी भावनाएं आपसे विरोध कर रही हैं. And ensure times are challenging already. बाहर तो हालात पहले से ही बहुत चैलेंजिंग है. वक्त चैलेंज कर रहा है. ऐसे में हमारा अपना माइंड, हमारी अपनी बॉडी, हमारे अपने विचार, हमारी अपनी भावनाएं, हमारी अपनी जीवन ऊर्जा भी अगर हमारे विपरीत पक्ष में जाकर खड़ी हो गई तो बच निकलना बहुत मुश्किल होगा. लेकिन अगर आपने इन अंदरूनी चैलेंजेस को फेस किया, इनको बीट किया, then you will perform at your best. I repeat, at your best. Your best. I know I'm repeating. If you are able to defeat those inner challenges which stop you to give a broad smile, if you beat them down, if you knock them down, अगर आपने अपने दिमाग में उत्पन्न हो रहे नकारात्मक और निराशा वाले विचारों को धर दबोचा, उन्हें मार गिराया, then you will be able to perform at your best. At your best, not world's best. दुनिया में बेस्ट आप परफॉर्म कर पाओ, मैं ऐसा नहीं कह रहा, लेकिन हां आप अपना बेस्ट दे पाओगे. बिकॉज बाहर आप कितना अच्छा कर पाएंगे यह जनाब कहां मेरे और आप पर निर्भर करता है. It depends upon many realities which are outside of our control. Wait. Definitely, this webinar promises you insights for transformation. But before we transcend the current formation, we must know what is our current formation. यह webinar आपको मौका देगा, आपको कुछ नए विचार देगा, कुछ नए तरीके बताएगा ट्रांसफॉर्मेशन के लिए.
जनाब इस फॉर्मेशन को ट्रांसेंड करेंगे, लेकिन पहले जान तो ले हमारी मौजूदा फॉर्मेशन है क्या। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड व्हाट योर करंट फॉर्म इज। मौजूदा हालात जनाब कैसे हैं, पहले इसको जानना बड़ा आवश्यक है। ठीक उसी प्रकार जब आप किसी अनजान टेरिटरी में पहुंच जाते हैं, आप मोबाइल से जीपीएस एप्लीकेशन से सवाल पूछते हैं, मुझको वहां पर जाना है, लेकिन जनाब जीपीएस ऐप आपको कुछ जवाब नहीं देता, बल्कि पहले आपसे सवाल पूछता है, अभी आप हो कहां। सो आई एम आस्किंग, better you ask yourself what is your current location, so that the GPS can tell you, GPS can guide you the exact distance and route to the destination. So allow me to set up the context for my talk, building this point only. मैं मेरी वार्ता किस संदर्भ में आगे बढ़ेगी, इसी बिंदु से आपको आगे लेकर चलता हूं। भगवान के बहुत आशीर्वाद से, with the grace of divine, I have had a very successful career as an entrepreneur. There have been times when I felt that my smart ways of conducting business and my focused efforts made everything possible. But let me give you an honest confession. At many times, rather, if I am honest, I should better tell you, at most times, during my successful career, whenever there came paramount success in various shapes, deep down I knew this is not me. There is something strange within that has always assisted me taste that success. जनाब 2005 की बात है, 2006 की बात है, आज से 15 वर्ष पहले भी मैं चार्टर्ड फ्लाइट्स लेकर, हेलीकॉप्टर लेकर भारत में उतरता था। हजारों लोग, इतनी बड़ी भीड़ मुझको देखने सुनने के लिए इकट्ठा होती थी। अरे मैं कहां 6 फीट का था, मैं कहां हीरो दिखता था, लेकिन मुझको वो देखने आते थे। कहां मैं बहुत अच्छी बात कर पाता था, ना तो हिंदी जुबान पर कुछ पकड़ थी, ना अंग्रेजी लैंग्वेज पर कुछ कमांड थी, लेकिन पता नहीं क्या था। पता नहीं क्या हुआ कि 2003 में यहां कॉलेज खत्म हुआ, 2003 मध्य में मैंने बिजनेस शुरू किया, एक इंडस्ट्री में आगे बढ़ा, और 1.5-2 साल के भीतर भीतर इतनी कामयाबी। जनाब शुरू में तो गलतफहमी हुई कि मेरा हुनर है, मेरी काबिलियत है, मेरी अदाएं हैं, लेकिन ना बिल्कुल नहीं। आज भी याद है, हेलीकॉप्टर से दिल्ली के एक नोएडा के मैदान में उतर रहा था, करीब 40,000 लोग खड़े थे। मैं हैरान था, मुझ में ऐसा क्या है। ऐसे कई सवाल जीवन में कई बार मेरे समक्ष उठे, जिन सवालों ने मुझे गंभीरता से इंट्रोस्पेक्ट करने के लिए मजबूर किया। आई स्ट्राइव्ड हार्ड टू एक्सप्लोर द नेचर ऑफ दैट समथिंग विद इन। वो क्या था मेरे भीतर, उसको जानने की जिज्ञासा मुझे बहुत प्यासा बना रही थी। I strived hard to explore the nature of that something within me, only to realize that all I was seeking is exploration of spirituality, exploring the science of spirituality. मैं अध्यात्म की तरफ आगे बढ़ रहा था। दोस्तों, यह केवल मेरा अनुभव नहीं है, आप भी अपने जीवन में पीछे मुड़कर तो देखें, आपको भी बहुत से ऐसे अनुभव जीवन में मिले होंगे। एक्सीडेंटली सही, अचानक से सही, लेकिन ऐसे बहुत से खुशी के पल, कामयाबी का अनुभव आपके भी जीवन में आपको मिला। बस नीति मेरा एक प्रयास है, जिसमें मैं आपके साथ अपने अनुभव साझा करना चाहता हूं, अपने विचार नहीं। Whatever I am going to share here is coming out of my own experience, not coming from the limited information which I acquired accidentally or consciously reading books or listening to various leaders. Dear friends, जिस अनुभव को जीवन में प्राप्त कर मैंने बहुत आनंदित महसूस किया,
ऐसे ही बहुत से अनुभव जीवन में आपको प्राप्त हुए जिसमें आपने बहुत आनंदित महसूस किया, प्रफुल्लित महसूस किया, प्रोत्साहित महसूस किया, उत्साहित महसूस किया, खुश महसूस किया, लेकिन वो सब अचानक से घटे। नीति बस एक प्रयास है आप सभी को जिज्ञासु बनाने के लिए। आई जस्ट वॉन्ट टू टर्न यू क्यूरियस कि जो एक्सीडेंटली हुआ, कोई तो ऐसा तरीका होगा, कोई तो ऐसी मेथोडोलॉजी होगी, कोई तो ऐसा मोडस ऑपरांडे होगा जो हमारी पकड़ में अगर आ जाए तो कॉन्शियसली भी अपने जीवन के अनुभव को हम हमेशा आनंदित बना सकते हैं, हमेशा खुशनुमा बना सकते हैं। दोस्तों, यहां पर मैं उस इंटेलिजेंस को, उस समथिंग को जिसके कारण जीवन में ये सब कुछ आपको मिला, कभी कभी मिला, अचानक से मिला, उस डायमेंशन को मैं कोई नाम देना चाहता हूं। नहीं, मैं नाम नहीं देता। उसे कोई भगवान कहता है, कोई अल्लाह बताता है, कोई गॉड कहता है, और भी अनेकों नाम हैं। हम उस डायमेंशन को आज इस वार्ता में आगे बढ़ने के लिए दो शब्दों से संबोधित करेंगे, इंटेलिजेंस विद इन, या उसे हम कॉन्शियसनेस भी कह सकते हैं। व्हाट नेम यू वांट टू गिव इट, आई लिव इट टू यू, मैं आप पर छोड़ता हूं। इस इंटेलिजेंस के बारे में इस संदर्भ में एक उदाहरण और देता हूं ताकि आपकी समझ थोड़ी सी गहरी उतर आए। आपने आज खाना खाया, सुबह नाश्ता किया, नाश्ते में क्या लिया? सैंडविच या फिर फ्रूट्स लिए, या लंच में आपने चपाती खाई? अभी ध्यान से देखें, वो चपाती या फिर वो फ्रूट और वो सैंडविच पिछले कुछ घंटों में आपके शरीर में तब्दील हो चुका है। द रोटी विच यू हैड has already become part of your body. Did you do some phenomenal brain work to make this happen? Or did you put some hard work? I give you a moment to analyze what I just mentioned. I repeat for you and I slow down for you to introspect. जो सुबह आपने खाना खाया था या आपने कल जो खाना खाया था, वो बीते दिन में आपके शरीर में तब्दील हो चुका है। क्या इस तब्दीली को संभव करने में आपने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया, या आपने कुछ अपने हाथों से, अपने शरीर से कुछ पुरुषार्थ किया? ना जनाब, कुछ भी नहीं। बस खाया था, वो भी अनकॉन्शियसली। लेकिन अंदर कुछ ऐसी शक्ति विद्यमान है जिसने उस रोटी को, उस सब्जी को, उस फल को मानव शरीर में तब्दील कर दिया। अगर अभी भी बात समझ में नहीं आई, एक और प्रश्न करता हूं। आप कल से श्वास ले रहे हैं, आप जब नींद कर रहे थे, when you were asleep, तब भी श्वास चल रही थी। आपको तो मालूम होगा, श्वास पॉसिबल हो इसके लिए ऑक्सीजन का आपके नाक के माध्यम से या आपके मुंह के माध्यम से, मोटा मोटा हम समझते हैं, आपके शरीर में जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऑक्सीजन कहां से आती है, आपको तो ये भी मालूम है। अभी जिस कमरे में आप मौजूद हैं, क्या नजदीक आपको कोई पेड़ नजर आ रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन ऑक्सीजन किसी ना किसी पेड़ पौधे से आप तक आ रही है या वातावरण से आप तक आ रही है। जनाब देखें, आप तो आज मेरे साथ व्यस्त हैं इस वेबिनार में, लेकिन स्वतः ऑटोमेशन देखें आप इस ह्यूमन मशीन का। लुक एट द इंटेलिजेंस विद इन। स्वतः ये ऑक्सीजन ले रही है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ भी रही है। ये प्रोसेस ऑन है, लाइफ प्रोसेस ऑन है, जिसमें आपके दिमाग का कोई योगदान नहीं है। चेक करें, क्या आपका दिल धड़क रहा है? Is it beating? Is it pumping? Oh yes, oh yes, you are alive. Heart is pumping, heart is beating. But this also did not ask for your knowledge, any input from the outer knowledge which you acquire from books or teachers. No, nothing of that sort. In fact, when I was born, when you were born, within a microsecond,
When I came to the world, or when you came to the world, you were breathing. बिना नर्सरी में दाखिला लिए, बिना किंडर गार्डन में गए भी आपको सांस लेना आता था। और आपको जब भूख लगती थी, आपको जब भाषा का भी ज्ञान नहीं था, अंदर से एक इंटेलिजेंस थी जो खुद ब खुद आपके शरीर का इस्तेमाल कर बाहर संकेत पहुंचाती थी आपकी मां को कि आपको दूध चाहिए। दरअसल दोस्तों, मैं आप सभी को धीमा धीमा क्या बताने का प्रयास कर रहा हूं कि जीवन में आपके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है, सांस लेना, खाने का शरीर में कन्वर्ट हो जाना, ये सब कुछ ऑटोमेटिक अंदर से हो रहा है। There is one intelligence within. That is what we can safely refer to as consciousness. दोस्तों, all the wisdom which I have acquired so far, I am gonna put to use using this platform of Niti, just to share how my curiosity helped me delve deeper into the sea of consciousness, और मेरे जीवन के अनुभव किस प्रकार बदलते चले गए। दोस्तों, उस इंटेलिजेंस का समुद्र जो मेरे भीतर है, जो आपके भीतर है, इसकी कुछ बूंदों के संपर्क में भी अगर आप आ गए, तो मैं आपको यकीन से कहता हूं, जीवन में कामयाबी की प्रोसेस में आप फास्ट फॉरवर्ड होता खुद को पाओगे। मेरे जीवन में इट हैपेंड व्हेन आई डिड इनर इंजीनियरिंग which was offered to me by my master Sadhguru Jaggi Vasudev. He initiated me into yogic spiritual practices, and I got the roadmap with clear directions how to tap into this intelligence. And trust me, एक बार उस इंटेलिजेंस के संपर्क में आने के बाद जीवन का अनुभव इतना आनंदित है, मैं आपको बता नहीं सकता। आपके मन में सवाल आ रहा होगा, जनाब यह वेबिनार तो एंटरप्रेन्योर्स के लिए होस्ट किया जा रहा है, हमको तो आप यह बताइए कि बिजनेस में हम कैसे तरक्की करेंगे। अरे जनाब, बिजनेस में तरक्की के लिए ही तो आपको बॉडी और ब्रेन की आवश्यकता है, और बॉडी और ब्रेन की फंक्शनैलिटी ऑप्टिमम हो, यह अपने चरम पर काम करे, इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कनेक्टेड रहें उस इंटेलिजेंस के साथ। तो चलें अपने भीतर की यात्रा के संदर्भ में आज कुछ बात करते हैं। एंड आई प्रॉमिस यू दिस वेबिनार कैन change the trajectory of your life in a large manner. I have always advocated in favor of choosing entrepreneurship as a livelihood option for youth in the Indian developing economy. इस लॉकडाउन के दौरान इस इकोनॉमिक इंजन के जो हम स्पेयर पार्ट्स हैं, एंटरप्रेन्योर्स, ये जो मशीन्स हैं, मैं और आप, ये सब लगभग बंद पड़ी हैं। और जनाब, मशीन की सर्विसिंग के लिए उसका बंद होना बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे हम लॉकडाउन के चौथे चरण में हैं और आगे क्या होगा मुझको नहीं मालूम, हमारे पास बहुत वक्त है, इस मशीन की सर्विसिंग की जाए। इस मशीन को संचालित कर रही वो दिव्य ऊर्जा, वो इंटेलिजेंस, वो कॉन्शियसनेस, उसके संपर्क में आने का प्रयास किया जाए। These insights from the realms of spirituality and entrepreneurship have compelled me to develop this platform called Niti, where I could share all of them with the seekers. And let me tell you, there is something in you. There is something in you which always want to expand. And that something is life within. That something is what I refer to as intelligence. That intelligence in you wants you to expand, and that has pulled you come here. You just need to nurture that something. You just need to nurture that something, and you will see participation in this process of success is actually just one step away from you. You take one step and you're on the path, moving forward in the process of success. So this is definitely a great moment for everyone who has tuned in.
You are ready to shift the status quo, shattering the previous status quo and previously held patterns. You are ready now. Now, do not expect any fruits from the webinar if you don't strive to bring some internal changes. If the focus is only on how to get more flowers out of it and not on nourishing it, it will serve no purpose. You need to nourish the roots. You need to nourish that what I'm referring again and again as something. You don't have to worry after that. What it will create, because of it, it will blossom naturally. एक बार हम जड़ों को पानी तो देकर देखें. अपने अनुभव से बता रहा हूं. आगे और आपको बताऊंगा इस प्रकार से कि समझने में आसानी होगी. Once we nurture the roots within, you'll blossom all over the place. Whatever you touch, wherever you go, you'll be a blossoming flower. तो आपका livelihood platform जो भी हो, आपका कुछ भी कारोबार हो, आप उद्यमी हैं, कैसा भी बिजनेस करते हैं, एक बार जड़ें मजबूत हो जाएं जनाब, देखिएगा किस प्रकार प्रोस्पेरिटी, हैप्पीनेस, सब कुछ आप तक खिंचा चला आता है. Hey, don't expect me to give you some golden tip. See, बीते 4 सालों में तो मैं बहुत ज्यादा इस प्रकार के वक्तव्य नहीं कर रहा था. उससे पहले Grace of Divine, I would have addressed millions of young individuals across the nation. I know the meaning of million. जी हाँ, दसियों लाख नौजवानों को संबोधित करने का मुझे मौका मिला. यह तो सदगुरु को जब मैंने सुना तो मुझे मालूम पड़ गया मुझे कुछ नहीं आता और मैं चुप हो गया. और चुप होने के बाद एक अंदरूनी यात्रा शुरू हुई. नहीं, ऐसा नहीं है कि इस दौरान मैंने कारोबार नहीं किए. आध्यात्मिक बनने का यह कतई मतलब नहीं है. आध्यात्मिक होने का तो मतलब है अब आप जीवन के लिए पहले से भी ज्यादा मजबूती से तैयार हैं. मैंने पिछले 3 सालों में 3 नए कारोबार शुरू किए. इस देश में नहीं, विदेशों में भी मैं कारोबार कर रहा हूं. तो आध्यात्मिक होने से तो जनाब सशक्तिकरण होता है. लेकिन मुझे याद है पहले जब मैं बड़े बड़े मंचों से हजारों नौजवानों को संबोधित करता था, अक्सर लोग सवाल करते थे, सर फिर भी एक टिप तो बताओ, एक टिप बताओ, कोई गोल्डन टिप दे दो. ना 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 ना, ऐसी कोई गोल्डन टिप मैं इस वेबिनार में आपको नहीं दूंगा. मैंने इसीलिए वेबिनार का टाइटल प्रोसेस रखा. टिप ऑफ सक्सेस नहीं रखा, प्रोसेस ऑफ सक्सेस रखा. हाउ लॉन्ग डिड यू टेक to learn the mastery of the machine you use? For example, मोबाइल. कितना वक्त लगा आपको मोबाइल के फीचर्स को जानने में? अभी भी आपको नहीं आते हैं. तो सक्सेस की एक प्रोसेस को जानना समझना, इसमें वक्त लगेगा. आप शुरुआत करें, मैं आपके साथ. So, welcome on board as I take you on flight towards the unfolding of your life. Once you set a vision for yourself that you are all set for unfolding, for unlocking that something inside you, if you do that consciously, it will lead you to infinite possibilities in life. So today, as promised in the brochure of the webinar, I'll be sharing 4 different stages of consciousness. No, consciousness is already a very corrupted word. So it is my humble attempt here to use consciousness word for the context I want to explain. But what is consciousness? Dear friends, it takes years of spiritual practices and seeking to get to the taste of consciousness. Still, allow me to share the 4 stages of consciousness to set the context for you to understand. So here I go on the slide. As you can see on the slide, I have designed for you 4 stages of consciousness. पहली stage, helpless stage. दूसरी stage, awareness stage. तीसरी stage, rewiring your inner world. और चौथी stage मैं योगा के संदर्भ में बात करूंगा. यहां पर आपको समझना है,
आपको जानना है कि आप कौन सी स्टेज पर हैं। अगर आप आज यह जानने का प्रयास करें कि अभी करंट फॉर्मेशन आपकी क्या है, तभी तो आप अगली स्टेज पर जाने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, पहली स्टेज अवेयरनेस स्टेज, वो स्टेज है जहां पर हम बहुत ज्यादा मायूस महसूस करते हैं। हमको लगता है कि जीवन में जो भी घटित हो रहा है, यह सब मुझ पर थोपा जा रहा है। We feel outer situations are shaping my life. Everything is against me. Things are happening wrong from outside. This is like a blame story. All of the people, you need to identify if you are in this stage that you are blaming everything outside, everybody outside, and you seem to be struggling. बहुत से लोग दरअसल इसी स्टेज में स्टक हो जाते हैं। इन अदर वर्ड्स, इनको ऐसा लगता है लाइफ इज हैपनिंग टू मी, लाइफ इज हैपनिंग टू मी। दे बिलीव they are part of a mechanical framework of life. Whatever is happening to them is the result of other people, other circumstances outside of their control. ऐसा लगता है कि मेरे जीवन का संचालन मेरा बॉस कर रहा है, मेरा परिवार कर रहा है, ये समाज कर रहा है, हालात कर रहे हैं, इसी वजह से मैं तरक्की नहीं कर पा रहा। मेरे परिवार में अगर यह व्यक्ति ठीक हो जाए, कक्षा में अध्यापक सही से अगर पढ़ाए, मेरे व्यापार में अगर सरकार की ये पॉलिसी आ जाए, तब मेरे व्यापार में तरक्की मेरे हाथों में होगी। इसे हम कहेंगे हेल्पलेस स्टेज। हियर यू फील यू आर अपसेट एंड द लाइफ कंट्रोल इज आउटसाइड। यह एक ट्रैप है दोस्तों। अधिकतर लोग यहीं फंसे रहते हैं और उनको मालूम ही नहीं पड़ता कि वो कुछ परसू कर रहे हैं। They are busy pursuing something significant, but that exactly proves, once you are pursuing something, that proves that there is the lack of something which is you are looking for. The more rich you want to be, the more poor you feel. जितना आप अमीर बनना चाहते हैं दोस्तों, इसका मतलब उतना आप गरीब समझते हैं। यहां पर आपने आज तक बहुत से मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुना होगा जो भाषणबाजी में आपको ऐसा कहते हैं, अमीर बनो, ये तो दिमाग का जादू है, पैसा खिंच के चला आएगा। ना ना ना, वो ठीक है, लेकिन वो पूरा सच नहीं है। द मोर यू वॉन्ट टू बी लव्ड, द लोनलियर यू फील डिस्पाइट पीपल अराउंड यू। जिस तरफ आप ज्यादा ध्यान देंगे दोस्तों, वही जीवन में घटित होगा। और जब आप बार बार ऐसा कह रहे हैं, I want to pursue happiness, I want to pursue wealth, this means your attention is towards what you do not have. The attention is on the lack of it. You believe that you are not successful. You believe your business is not flourishing. You believe market is bad. You believe customer is not right. You believe that I do not have it and I have to pursue for it. Wanting a positive experience itself is a negative experience. I repeat for you. Wanting a positive experience itself is a negative experience. Accepting a negative experience is a positive one. Accepting a negative experience is a positive one. But at some point, many people realize कि वो इस ट्रैप से बाहर हैं, कभी लगता है इस ट्रैप में हैं। तो आप इस वेबिनार के बाद खुद से सवाल कीजिएगा कि दिन भर कितनी बार आप इस ट्रैप में जाते हैं और कितनी बार इस ट्रैप से बाहर आते हैं। अगर आप 2 कदम आगे चले और 2 वापस चले गए दोस्त, यात्रा तो बिल्कुल भी तय ना हुई। तो परमानेंटली इस ट्रैप से बाहर आना बहुत इंपॉर्टेंट है इस प्रोसेस ऑफ सक्सेस में, इस ग्रोथ में अगले पड़ाव को छूने के लिए। मैं अपने जीवन का उदाहरण देता हूं। 12वीं कक्षा के बाद मेरे फादर ने मुझे इंजीनियरिंग करने के लिए भेज दिया। मुझे ऐसा लगा कि मुझ पर एक थोपा गया है। मुझे ऐसा लगा कि मैं तो एंटरप्रेन्योर बनना चाहता हूं। 4 साल तकनीकी पढ़ाई में मेरी कोई रुचि नहीं है। और मैं कन्फेशन देता हूं, जीवन के वो 4 साल कहीं ना कहीं अपनी महत्वाकांक्षाओं को लेकर, अपने सपनों को लेकर मैं बहुत परेशानी में रहा कि कॉलेज के बाद नौकरी से मुझे जो तरक्की चाहिए वो नहीं मिल पाएगी। ये मैंने आपको अपना उदाहरण दिया। आप अपने आप से पूछें, क्या आप इस
स्टेज में स्टक तो नहीं है। 4 स्टेजेस की पहली स्टेज हेल्पलेस स्टेज, दूसरी स्टेज द स्टेज ऑफ अवेयरनेस। यहां आपको लगता है दैट यू हैव सम कंट्रोल ओवर द थिंग्स दैट हैपन अराउंड यू। इस स्टेज पर आकर आपको लगता है दैट यू कैन सेट योर गोल्स, you can study, you can bring change to the things happening around you. At stage 2, you start understanding that you can shake things up and change the world. जैसा मेरे जीवन में हुआ। कॉलेज के बाद मैं नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशन में आया, सकारात्मक विचारों पर कई किताबें पढ़ी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये सब किताबें मैंने पढ़ी, बड़ी सोच का बड़ा जादू, और कुछ यूनिवर्सल लॉज की समझ मुझे मिली, और मैंने सक्सेस इसकी प्रोसेस के दूसरे पड़ाव को छुआ, और 2003 मध्य में एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म पर उतरा, और 2 वर्ष के अंदर मैं लाखों रुपए कमा रहा था। केवल पैसा नहीं, मैं बहुत नाम कमा रहा था। 2005 में भारत के एक बड़े न्यूज़पेपर मीडिया हाउस ने मुझे दिल्ली का यूथ आइकन नामांकित किया। मुझे आज भी याद है 2005 में ऑल इंडिया रेडियो, भारत सरकार का जो राष्ट्रीय रेडियो चैनल है, मुझे वहां निमंत्रण मिला, मैं वहां पर गया, पूरे राष्ट्र को संबोधित किया 2005 में कि एंटरप्रेन्योरशिप ही एक ऐसा व्हीकल है जिस पर नौजवानों को आना होगा, तभी यह भारत का इकोनॉमिक इंजन तरक्की की तरफ आगे बढ़ेगा। और 2020 में नीति के माध्यम से मैं दोबारा ये प्रयास कर रहा हूं, जहां मैं नौजवानों को प्रेरित कर पाऊं कि आज भारत की इकोनॉमिक इंजन को हमारी आवश्यकता है। तो दूसरे पड़ाव में अवेयरनेस आ जाती, कुछ ऐसे कानून हैं, कुछ ऐसे तरीके हैं, कुछ ऐसी मेंटल प्रोसेसेस हैं, आर्ट ऑफ विजुअलाइजेशन, डायरेक्शन ऑफ मेंटल एनर्जी, बहुत कुछ है, आर्ट ऑफ एफर्मेशन, जिससे हम जिंदगी के कुछ आयाम, तरक्की के कुछ आयाम अपने हाथ में ले सकते हैं। यहां पर यू सीम टू ट्रेन योर माइंड टू थिंक पॉजिटिव एंड अबंडेंस स्टार्ट्स कमिंग टू यू। That is what you might have got influenced from the movies like The Secret, या फिर YouTube पर आज जो बहुत से प्रोफेशनल स्पीकर्स हैं, वो भी इस संदर्भ में बहुत बात करते हैं। क्या वो ठीक है? हाँ, ठीक है। क्या वो कंप्लीट है? नहीं, वो कंप्लीट नहीं है। अपने अनुभव से मैं आपको बताता हूं, रुपया, दौलत, नाम, शौहरत, बड़ी गाड़ी, सब कुछ था, लेकिन फिर भी कभी कभी मैं बहुत खुश हो जाता और कभी कभी मैं उदास हो जाता। मुझे लगता मेरे पास वो आ जाएगा ना, मेरे पास 1 करोड़ रुपया आ जाएगा तब मजा आएगा। 1 करोड़ आने के बाद भी कुछ क्षण की खुशी मैं फिर वापस वैसा ही महसूस करता। मैं वो गाड़ी खरीद लूंगा ना, तब मजा आएगा। तो दोस्तों, इस स्टेज पर अगर आप रहेंगे, तब आपको जो अभी लगता है सक्सेस के पैरामीटर्स, लेकिन वो सामाजिक हैं। यहां मैं बताना चाहूंगा, इस स्टेज पर भी बहुत से लोग स्टक हो जाते हैं। यहां पर जो टारगेट गोल्स आप रखते हैं, ज्यादातर वो गोल सोशल इम्प्रिंट से आते हैं। आपने दूसरे को देखा, उसके पास गाड़ी है, तो आपको लगा मैं भी गाड़ी लूंगा, तभी तरक्की महसूस करूंगा। आपको लगा उसके पास बड़ा बंगला है, यूट्यूब पर उसके इतने सब्सक्राइबर्स हैं। दोस्तों, आप अपनी कामयाबी का मापदंड आप बाहरी सिचुएशंस और दूसरे लोगों के रेफरेंसेस में जब सेट करते हैं, इस स्टेज पर रहना खतरनाक हो सकता है। इस संदर्भ में मैं कहना चाहूंगा, हाल ही में देखें आप, लॉकडाउन के दौरान जर्मनी के एक मंत्री ने आत्महत्या कर ली। क्या वो कामयाब नहीं थे? वो कामयाब थे, लेकिन बाहरी सिचुएशंस विपरीत हुई, उनको लगा वो नहीं टैकल कर पा रहे और उन्होंने आत्महत्या कर ली। अभी कुछ महीने पहले भारत के एक जाने माने एंटरप्रेन्योर, जिनसे मैं भी बहुत इंस्पायर्ड रहा बीते सालों में, कैफे कॉफी डे के मालिक, इतना बड़ा अंपायर खड़ा करने के बाद भी जिस प्रकार उन्होंने शरीर छोड़ा, जिसे हम खुदकुशी कहते हैं, जीवन को अंत करने का सबसे भयानक और खतरनाक तरीका, इस प्रकार जीवन को उन्होंने समाप्त किया। तो मैंने कहा सक्सेस एक प्रोसेस है। तो अगर आप इस पड़ाव में हैं
आपके पास रुपया पैसा है, लेकिन फिर भी रात को नींद चैन से नहीं आती है, तो अभी इस प्रोसेस में आपको अगले पड़ाव, अगले आयाम को छूने की आवश्यकता है. बट दैट विल आस्क फॉर रेट्रोस्पेक्शन, दैट विल आस्क फॉर इंट्रोस्पेक्शन. ठीक है. हाउ ऑफन you find yourself in those terrible states of mind. So दोस्तों, let us now try to understand what is this third stage all about. Third stage, as I mentioned, here you start rewiring yourself, recoding yourself. मेरे जीवन में मेरा क्या सपना था, स्कूल कॉलेज में बड़ी बड़ी मैगजीन्स में नाम आ जाए, एक बार इकोनॉमिक टाइम्स मुझे फीचर कर दे, हिंदुस्तान टाइम्स इस अखबार में नाम आ जाए, इंडिया टुडे ने मुझे एक बार फीचर कर दिया तो जीवन संपन्न, ऐसा घर बनाऊंगा, स्विमिंग पूल होगा, थिएटर होगा, सब कुछ मैंने आज से एक दशक पहले प्राप्त कर लिया था. लेकिन दोस्तों, सच बता रहा हूं, झूठ ना कहूंगा, इस विद्या के मंच पर खड़ा आपको संबोधित कर रहा हूं, झूठ कह भी कैसे सकता हूं. तब भी मुझे लगता था कि मैं बहुत खुश रहूंगा, ऐसा नहीं है. तब मैंने खुद को देखा, खुद को पाया ग्रोथ प्रोसेस की तीसरी स्टेज में, जहां मैंने मेडिटेशन करना शुरू किया, ब्रह्म कुमारीज और बहुत से धार्मिक गुरुओं के संपर्क में आया, यूट्यूब पर बहुत संत महात्माओं को सुनने लगा, गीता का पठन किया, और मैंने महसूस किया इस सब पढ़ाई से मुझे कुछ कुछ मजा तो आने लगा था. दोस्त, जो पहली स्टेज थी, हेल्पलेस स्टेज, वहां हम महसूस करते हैं लाइफ इज हैपनिंग टू मी, आई एम हेल्पलेस, जो हो रहा है वो हो रहा है मेरे साथ. दूसरी स्टेज में वी फील लाइफ इज हैपनिंग फ्रॉम अस, लाइफ इज हैपनिंग फ्रॉम मी, मैं कर रहा हूं. बट तीसरी स्टेज में अगर आप पहुंच जाते हैं तो आपको लगता है लाइफ इज हैपनिंग थ्रू मी. क्योंकि 2013-14 से लेकर आगे 4-5-6 वर्षों में मेरा ज्यादा ध्यान खुद को रिवायरिंग करने में था. लेकिन इस दौरान भी मेरे एक दो नहीं अनेकों कारोबार मैंने शुरू किए, खड़े किए और बड़े किए. इस स्थिति में आने के बाद आपके जो मटेरियल एस्पेक्ट्स हैं वो पूरे हो रहे हैं, वहां कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है. लेकिन यहां पर आप जब पहुंच जाते हैं, यहां यू गेज योरसेल्फ इन अ बेटर मैनर, यू स्टार्ट एम्ब्रेसिंग द इनर पावर, यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग ग्रेटिट्यूड, यू स्टार्ट इंट्रोस्पेक्टिंग क्वाइट ऑफन. और आपको मालूम पड़ने लगता है जो स्टेज दूसरी में आपको लग रहा था कि आपकी कामयाबी आपको आपकी वजह से मिली, तीसरी स्टेज में आ गए तो सिम्पटम ये है, अब आपको लगने लगता है कि नहीं, इस कामयाबी में औरों का भी योगदान था. दूसरी स्टेज थोड़ा सा मर्दाना महसूस करती है, इट इज लाइक मस्कुलिन. तीसरी स्टेज में अगर आप हैं तो आप थोड़ा सा फेमिनाइन महसूस करते हैं. 2006, 7, 8 में अगर पुराना कोई वीडियो आप में से कोई देखे तो मैं दहाड़ता था, मैं चिल्लाता था, मैं कहता था जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, मैं इस कहावत को बदलने आया हूं, मैं वो बादल हूं जो गरजेगा भी खूब और बरसेगा भी खूब. लेकिन मैंने महसूस किया 2014, 15, 16 इन वर्षों में मैं अब गरज नहीं रहा था, लेकिन तब भी मेरे पास खूब तरक्की आ रही थी. मैं अब महसूस कर रहा था यह तरक्की मैं नहीं पैदा कर रहा, मेरे माध्यम से कुछ और है जो इस तरक्की तक मुझको पहुंचा रहा है. दिस स्टेज is a very good stage, but this is also a stage. Here I feel life is happening through me. Stage 1, life is happening to me, helpless. Stage 2, life is happening from me, for me. Stage 3, life is happening through me. Here you surrender. अमिताभ बच्चन जी, मुझे याद है, बड़ी पुरानी बात है, उनकी तबीयत एक बार बहुत खराब हो गई थी, उनका बॉलीवुड का करियर तक समाप्त हो गया था. बाउंस बैक किया उन्होंने,
कई ऐसे इंसिडेंट्स मैंने उनके बारे में पढ़े। एक बार जब बाउंस बैक किया, यहां पर उनकी तबीयत खराब थी। जब तबीयत ठीक हुई, वापस वो शूटिंग सेट पे नहीं पहुंचे, तिरुपति बालाजी के मंदिर में पहुंचे। तीसरी स्टेज पर अगर आप हैं तो आपको मालूम है कि मेरी एक्टिंग नहीं कुछ और है, जिसकी शरण में मुझको हमेशा रहना होगा। हियर यू डेवलप द क्वालिटी ऑफ सरेंडर। अगर आप दूसरी स्टेज में हैं, तीसरी स्टेज पर आएंगे तो आनंद, खुशी, प्रॉस्पेरिटी सब कुछ आप तक और ज्यादा तादाद में पहुंचेगा। इसके लिए एक तरीका है, यू नीड टू सरेंडर। नॉट सरेंडरिंग टू आउटसाइड सिचुएशंस, बट सरेंडरिंग टू समथिंग विद इन अस। गॉड इज नॉट आउट देयर, गॉड इज विद इन। बाहर जाने की आवश्यकता नहीं, अंदर उतरने की आवश्यकता है। दोस्तों, तीसरा पड़ाव ये जो कामयाबी का था, मेरे जीवन में मुझको यह मिला। इसमें भी मुझे बहुत मजा आया, लेकिन तब भी मैं कह सकता हूं कि फिर भी खालीपन था। 4 सवालों के जवाब मिलते तो 4 और खड़े हो जाते। मैं बेचैन था। ज्ञानी तो बहुत बन चुका था। ऐसा भी कई बार हुआ, कई संत महात्माओं के साथ बैठ गया या बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स के साथ बैठ गया। दोनों ही मंचों में ग्रुप डिस्कशन में बड़ा एक्टिवली पार्टिसिपेट किया, लेकिन मुझको मालूम था यह सरफेस है। मैं जो बोल रहा हूं ऊपर से बोल रहा हूं, अंदर आज भी कई बार एंजाइटी होती है। बड़ी गाड़ी, बड़ा बंगला, बड़ा नाम, ध्यान का भी कुछ ज्ञान, तब भी अंदर कुछ बेचैनी होती है। दोस्तों, चौथी स्टेज, आप उस स्लाइड को आपके साथ शेयर भी करूंगा। मैंने कहा चौथी स्टेज है एंड नाउ योगा। दोस्तों, मेरे जीवन में जब मैंने योगाभ्यास शुरू किया, जब सदगुरु ने मुझे योगा में दीक्षा दी, दैट इवेंचुअली बिकेम द टर्निंग पॉइंट ऑफ माई लाइफ। पिछली स्टेजेस में आप महसूस कर रहे थे, पहली तो हेल्पलेस, दूसरी में आई गेट दैट, तीसरी में आई लेट इट हैपन थ्रू मी, हो जाएगा। देयर इज अ डिवाइन ग्रेस, और लोग हैं मेरे साथ, एक टीम मेरे साथ है। इट वॉज अबाउट लेट एटीट्यूड, हो रहा है। चौथे में तो जनाब, योगा करने से तो क्या आपको प्राप्त होता है, मैं आपको क्या बताऊं। अगर आपने खुद को योगा को समर्पित कर दिया, दोस्तों, यहां से असली ब्लॉसमिंग शुरू होगी। You will tap that intelligence, that divine power, that something, जहां से इस वेबिनार की हमने शुरुआत करी थी। आज तो केवल मैं इतना ही आपको बता पाऊंगा। चौथी स्टेज में आने के बाद आपको मालूम है जीवन का अनुभव कैसा होता है, कि बाहर कुछ भी हो जाए आप खुश हैं। मुझे मालूम है सवाल आ रहा है, सर बिजनेस की बात करो। अरे जनाब, एंटरप्रेन्योरशिप इज ऑल अबाउट टेकिंग रिस्क। और रिस्क लेने से हम क्यों डरते हैं कि फेल हो गए, हाय तो टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे। लेकिन अगर आप योगा में आ गए, अगर आप चौथे चरण में आ गए, तो दोस्तों आपको एक गारंटी मिलेगी कि बाहर कुछ भी हो जाए मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। जनाब, एक एंटरप्रेन्योर के लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि उसके पास यह आश्वासन हो कि मैं रिस्क लूंगा, अपना बेस्ट दूंगा, लेकिन तब भी अगर कामयाबी हाथ ना लगी, मैं घबराऊंगा नहीं, मैं टूटूंगा नहीं, मैं बिखरूंगा नहीं। लेकिन ये कहने से नहीं होता दोस्तों, योगा तो करने से ही होता है। यहां पर दोस्तों, मैं आपको योगा करने के लिए प्रेरित करना चाहता हूं, लेकिन योगा किसी किताब से ना कीजिएगा, ना योगा टीचर से कीजिएगा। योगा के लिए एक योगी के संपर्क में आना बहुत आवश्यक है। आप यूं कहेंगे कि मैं घूम फिर के फिर अपने गुरु सदगुरु की बात करता हूं, क्यों ना करूं। मेरे जिस गुरु ने मुझे कामयाबी के इस चौथे चरण पर लाभ पहुंचाया है, जहां मेरे जीवन का अनुभव अब भारी हालातों पर पहले जैसा नहीं है। बहुत हद तक मेरा अंदरूनी अनुभव अब मेरे हाथ में है। एंड इफ यू वांट टू इंजीनियर योर बिजनेस, इंजीनियर योर एंटरप्राइज, इट इज बेटर यू फर्स्ट इंजीनियर योर इनर सेल्फ। दोस्तों,
यहां पर आने के बाद मालूम कैसा लगता है? दोहराऊं दोबारा आपके लिए। पहली स्टेज, लाइफ इज हैपनिंग टू मी। दूसरी स्टेज, लाइफ इज हैपनिंग फ्रॉम मी, मैं कर रहा हूं। तीसरी स्टेज, लाइफ इज हैपनिंग थ्रू मी, एक सरेंडर आ जाती है। चौथी स्टेज, लाइफ इज मी। चौथी स्टेज, लाइफ इज मी, मैं खुद जीवन हूं, मैं खुद वो इंटेलिजेंस हूं जिसके संदर्भ में मैं बात कर रहा था। इसलिए दोस्तों, मेरे देश में, हमारे देश में, आपके देश में जो व्यक्ति कामयाबी के इस चरण को छू लेता था, हम उसको कहते थे यह तो भाग्य विधाता है, अपना भाग्य खुद लिखता है। उसे हम भाग्यवान बोलते थे, उसे हम भगवान बोलते थे। राम भगवान या कृष्ण भगवान। अगर आप कामयाबी की दूसरी स्टेज में हैं तो आपको लगेगा जनाब इसकी तो गर्लफ्रेंड तक इसको नहीं मिली थी। अगर आप कामयाबी की दूसरी स्टेज पर हैं, आपको लगेगा राम का तो राज्य तक पॉलिटिकल कारणों की वजह से इससे छिन गया था। लेकिन तब भी उन्हें हम भगवान बोलते हैं, क्योंकि असली कामयाबी वो जब आप खुश हैं। और यहां पर दोबारा दोहरा दूं, अगर आप खुश हैं, मेडिकल साइंस भी आज पुष्टिकरण करती है इस बात का कि अगर आप खुश हैं तो आपकी बॉडी और आपका ब्रेन अपना बेस्ट परफॉर्मेंस आपको देगा। और एंटरप्राइज को बिल्ड करने के लिए आपको क्या चाहिए? तो योगा करने से आपके अंदर ऐसे केमिकल्स का सिक्रीशन शुरू हो जाता है कि स्वतः आप खुश रहना शुरू करते हैं। जब ये बातें मैं सुनता और पढ़ता था ना कुछ वर्षों पहले, मुझे यह बातें केवल इंटेलेक्चुअल लगती थी, लेकिन आज अनुभव से बता रहा हूं, मैं बिना बात से खुश रहता हूं। ऐसा अक्सर होता है, आप किसी व्यक्ति को मिलते हैं और पूछते हैं जनाब क्या हाल है, सब ठीक तो है? और वो आपको जवाब देता है नहीं यार बस ऐसे ही है। क्यों, क्या हुआ? और जवाब क्या देता है? बस कुछ नहीं यार। अरे भाई, जब बिना कारण के इंसान मायूस रह सकता है तो बिना कारण के इंसान खुश भी रह सकता है। और अगर आप खुश रहेंगे तभी आप कहेंगे लाइफ इज मी। और एक बार आपके जीवन में वो आयाम जो पॉसिबल है, जिसके तरीके हैं, जिसके मेथड्स हैं, जिसकी टेक्नोलॉजी है, एक बार लाइफ इज मी इस स्टेज पर अगर आप पहुंच गए तो बल्ले बल्ले, शावा शावा। अब दो तरीके दोस्तों, एक तरीका तो यह कि आप आइडेंटिफाई करो आप किस स्टेज पर हो, फिर आप पहली, दूसरी, तीसरी और फिर चौथी पर हो। और एक बाईपास है कि सीधा आप योगा में आ जाओ। दोस्तों, योगा से होगा, it will light up your inner energies, it will light up your soul, everything will pale in comparison. Once you taste that you are alive, trust me, trust me, you become a wonderful being, you become a magnet. अरे लॉजिकली मेरे को बताओ दोस्तों, जिनके पास अरबों रुपए हैं, जिनके बड़े बड़े एंटरप्राइजेस हैं, लॉजिकली कोई तरीका है जो आप बयान कर पाओ कि ऐसे 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 स्टेप स्टेप चलोगे तो दूसरी या तीसरी मंजिल तक पहुंचोगे? अगर आप मैजिकल प्रोग्रेस चाहते हो, मैजिकल ग्रोथ चाहते हो, मैजिकल सक्सेस चाहते हो, तो मैं आपको एक मैजिकल तरीका बता रहा हूं, योगा। योगा के विषय में आने वाले वेबिनार्स में हम बात करेंगे। डियर फ्रेंड्स, बिफोर वी डिस्पर्स, आई वांट टू टेल यू, ऐसा भी पॉसिबल है कि जो स्टेजेस मैंने आपको बताया ये लीनियर नहीं है। लाइफ के किसी एरिया में, रिलेशनशिप्स में, इमोशनल हेल्थ में, फिजिकल हेल्थ में, आप क्या पता स्टेज 1 में हो, किसी में स्टेज 3 में हो। तो आज का होमवर्क रहा, आप लाइवलीहुड एज एन एंटरप्रेन्योर आप किस स्टेज पर हैं, आप खुद को अंक दीजिएगा। बिकॉज टिल द टाइम you realize that what is your current formation, no transformation will happen. So these steps of 4 stages will help you navigate the steps unfolding the process of success. अगर कोई ऐसा आइडिया है जो कामयाबी का तो था लेकिन अभी तक आपके केवल दिमाग में पीछे कहीं पर पड़ा है, it is high time, stop procrastinating and take action. दोस्तों, वेबिनार रजिस्ट्रेशन के पश्चात आपने एक मेल रिसीव किया, जिस मेल में आपको बताया गया कि कुछ और ऐसे बिंदु हैं,
कुछ और ऐसे पॉइंट्स हैं जिस विषय में मैं यहां पर बात करूंगा। हालांकि टाइम हमारे पास कम है, अगर आप मौजूद रहें तो इस क्लासरूम को हम 15 मिनट आगे बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, एक बार स्लाइड मैं आपको दोबारा दिखाई देता हूं ताकि आप एक बार मेंटल इम्प्रिंट ले लें कि हमने आज कौन कौन सी स्टेजेस के बारे में बात करी। हियर आई गो। The 4 stages of human consciousness: the helpless stage, the awareness stage, third stage where you start recording your inner world, and fourth, the ultimate stage where not only can you touch that something, that divine intelligence, you can become that intelligence. This webinar was a modest attempt of mine to help you navigate and introspect that which stage do you belong to. Going further, as I promised, I'll be covering few more important questions which might come to your mind. So there goes the slide on your screen. The secret of exercising control over external circumstances. There is no secret to it because you cannot control the external circumstances. मैं करनाल में रहता हूं, यहां से कुछ मील की दूरी में कुरुक्षेत्र नामक शहर है, जिसके विषय में आपने सुना होगा, जहां महाभारत का युद्ध लड़ा गया था। भगवान कृष्ण ने बहुत प्रयास किया एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस को अपने हाथ में लेने के लिए, लेकिन वो नहीं कर पाए और महाभारत का युद्ध फिर भी छिड़ा। दोस्तों, आप केवल कंट्रोल कर सकते हैं तो केवल अपनी बॉडी, अपना ब्रेन, अपना माइंड और अपना एक्सपीरियंस। आप कंट्रोल कर सकते हैं उन 5 एलिमेंट्स को जिनसे आप बने हैं, वो पंचभूत, वो 5 तत्व जिससे हम बने हैं, जल, वायु, आकाश, अग्नि। ये 5 एलिमेंट्स, एक यूट्यूब पर स्वधर्मा नामक एक चैनल हमने शुरू किया। मैंने इन 5 एलिमेंट्स के बारे में वहां प्रयास किया, या फिर आप सीधा मेरे भी रिसोर्स तक पहुंचे। मैं तो एक बूंद हूं उस समुद्र की, जिस समुद्र का नाम सदगुरु है। तो यहां पर आपको मैं भेंट में आज एक ईशा क्रिया नामक एक प्रैक्टिस देता हूं, जहां से आप अपने जीवन में उस आयाम को छू पाएंगे जहां पर योर इनर सर्कमस्टांसेस, योर इनर एक्सपीरियंसेस विल कम हैंडी टू यू। दोस्तों, लॉजिक की बात मत करो। अगर आप सच में बहुत कामयाब होना चाहते हो, अपने एंटरप्राइज को मैजिकल ग्रोथ देना चाहते हो, तो आपको लॉजिक को, लिमिटेड लॉजिक को पीछे छोड़ आगे आना होगा। आई प्रेजेंट टू यू दैट इज अ की टेक अवे फ्रॉम दिस एस्पेक्ट, फ्रॉम दिस स्लाइड, ईशा क्रिया। आप YouTube पर जाकर इस क्रिया से लाभ उठा सकते हैं। एक और विषय कि क्या इधर अवेकनिंग से हम अपने जीवन में अपने सपनों को हकीकत की शक्ल दे सकते हैं? क्या हमारा व्यापार और बाहरी स्थिति में कुछ बदलाव हम ला सकते हैं? हाँ, बदलाव पॉसिबल है, बेहतर कर पाना पॉसिबल है। मुझे याद है आज से कुछ वर्ष पूर्व CNBC चैनल ने एक प्रोग्राम होस्ट किया दिल्ली में, एक प्रोग्राम होस्ट किया जहां पर भारत से करीब 100 CEOs को निमंत्रण मिला और मेरा सौभाग्य, मैं भी उस ऑडियंस में मौजूद था। वहां पर श्री नारायण मूर्ति, जिनके विषय में आप बहुत जानते होंगे, इन्फोसिस के संस्थापक, यह एक सेशन को मॉडरेट कर रहे थे और उस पैनल में 10 और कंट्री के जाने माने एंटरप्रेन्योर्स थे, जैसे कि मेक माई ट्रिप के फाउंडर। आप समझ सकते हैं कि वो पैनल किस लेवल का था। तो मूर्ति साहब ने पूछा उन 10 लोगों से कि मेरा सवाल आपसे केवल इतना सा है कि आपकी कामयाबी में बहुत से ऐसे कारण रहे होंगे जिन्होंने आपको आगे पुश किया, आपको कामयाब बना दिया। फिर भी कोई एक ऐसा बिंदु, कोई एक ऐसा पॉइंट जिसको आप सबसे ज्यादा महत्व देना चाहेंगे और ऑडियंस को बताना चाहेंगे कि अगर वो वाली चीज जीवन में आ जाए तो कामयाबी का रास्ता जल्दी तय किया जा सकता है। आप मानेंगे 10 में से 9 लोगों ने क्या जवाब दिया? इंट्यूशन।
इंट्यूशन, 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 इंट्यूशन। तब तक सदगुरु ने मुझे अपनी गोद अभी नहीं दी थी। मैंने घर आकर इंट्यूशन विषय पर बहुत किताबें छान मारी और यहां कंक्लूजन में निकाल पाया था, इंट्यूशन मींस इन ट्यून विद दैट समथिंग। याद आया ना जिस समथिंग से यह वेबिनार शुरू किया था, इन ट्यून विद दैट समथिंग, इन ट्यून विद गॉड। अंदर ही है सब कुछ, लेकिन हम उसको सुने तब तो, क्योंकि जब भी कुछ मुश्किल आती है हम बाहर गूगल से पूछते हैं, गूगल बाबा आप बताओ क्या निवारण है। अंदर भी एक बाबा छिपा बैठा है, अंदर है अल्लाह, वहां तक जाएं तो सही, वहां नमाज अदा करें, आपको बहुत कुछ सुनाई देगा। इंट्यूशन मीन्स इन ट्यून विद गॉड। टर्निंग इंट्यूटिव विल हेल्प यू स्केल अप योर बिजनेस लाइक एनीथिंग। दोस्तों, इस स्लाइड का मकसद तो केवल आपको फिर से जिज्ञासु बनाना है, क्योंकि मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम केवल इंफॉर्मेशन देता है। रियल एजुकेशन वो एजुकेशन है जो आपको जिज्ञासु बना दे। द एजुकेशन विच शुड टर्न यू क्यूरियस टू एक्सप्लोर मोर बाय योरसेल्फ। टिल द टाइम exploration starts by yourself, you cannot reach yourself. And if you cannot reach yourself, you cannot know yourself. If you cannot know yourself, you cannot enhance the power of the self. And if you cannot enhance the power of the self, how can you use the power of the self? And if you cannot use the power of the self, please don't mind, you are useless. अगर मेरे गुरु बड़ा अच्छा समझाते हैं, it is not about becoming a superhuman being. It is about realizing that being human itself is super. क्योंकि ये जो इंट्यूशन वाला, यह जो आर्ट है, यह जो कला है, इस पर पकड़ इंसान चाहे कॉन्शियसली तो बना सकता है। आने वाले वेबिनार्स में हम इस विषय को भी जरूर लेंगे। वेबिनार के बाद आप तक पहुंची ईमेल में आपको बताया गया था कि इस बिंदु पर भी कुछ चर्चा होगी, हाउ टू गिव योर बिजनेस अ सक्सेसफुल स्टार्ट। यहां पर दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले तो अगर आप बिजनेस में उस चरम शिखर तक पहुंचना चाहते हैं जहां पर केवल सामाजिक कामयाबी ना हो, जहां पर एक फुलफिलमेंट हो, दोस्तों स्टीव जॉब्स को पढ़ें आप। महानतम सीईओ रहे पिछली सदी के, लेकिन उनके जीवन का आखिरी पड़ाव आप देखें, वो खुद बताकर गए कि जीवन में मटेरियल सक्सेस तो थी लेकिन जीवन फुलफिलिंग नहीं था। हालांकि भारत आकर तीसरी स्टेज पर वो पहुंच भी गए थे। यहां पर आपको समझने में आसानी होगी, तीसरी स्टेज जहां पर स्टार्टेड रीवायरिंग हिज इनर वर्ल्ड। नीम करोली बाबा इस आश्रम में नैनीताल के पास आए थे। He got to the stage 3, but he kept oscillating between stage 2 and stage 3. मैंने स्टीव जॉब्स की बायोपिक मूवी देखी। मुझे याद है जब मेरे घर में मैंने एक बड़ा सा थिएटर बनाया तो स्टीव जॉब्स से मैं बहुत इंस्पायर्ड था। तो थिएटर के अंदर पहली मूवी मैं स्टीव जॉब्स देखना चाहता था और मैंने मेरे जीजा जी से अमेरिका से, वो भी इस वेबिनार को लाइव अमेरिका से आज देख रहे हैं। मेरे कुछ मित्र कई मुल्कों से इस वेबिनार में लाइव हमारे साथ जुड़े हैं, उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मौका दिया कि आपके साथ मैं यह बात कर पाऊं। तो स्टीव जॉब्स वहां पर स्टेज 2 में मुझे कई बार नजर आए, जहां पर उनको बहुत गुस्सा आता था, बहुत जल्दी अपनी टीम में वो कॉन्फ्लिक्ट में पड़ जाया करते थे। तो स्टेज 3 से अगर आप स्टेज 4 तक जाने का कॉन्शियस फैसला नहीं करते, संभवतः अब वापस स्टेज 2 में पहुंच जाएंगे और वहां स्टक हो जाएंगे। स्टीव जॉब्स स्टेज 2 में स्टक हो गए। मैं बहुत छोटा हूं, उन पर टिप्पणी नहीं कर रहा, लेकिन मुझे स्वतंत्रता प्राप्त है कि मैं अपना इंसाइट शेयर कर पाऊं उस जीवन के संदर्भ में, कि हमारे लिए एक संदेश वो देकर गए कि इंसाइट
जीवन में थी मैं कामयाब तो हुआ, तीसरी स्टेज से वापस लौट गया। दोस्तों, आप जीवन में जो कारोबार चुने, पहले तो अपने आप से पूछेगा, क्या यह वो क्षेत्र है, क्या यह वो कार्य क्षेत्र है जो जीवन के अंतिम वक्त तक करने में भी आपको मजा आएगा? नहीं नहीं सर, मैं तो 5-10 साल के लिए कर रहा हूं। पहली बात तो यह आपको किसने गारंटी दे दी कि 5-10 साल का जीवन शेष है? किसने बता दिया आपको? हमारे पास सीमित वक्त है। लाइफ इज अ लिमिटेड कॉम्बिनेशन ऑफ लिमिटेड टाइम, एनर्जी एंड सम कर्मा। इस विषय पर गहरा उतरने का आज यह वेबिनार नहीं है, लेकिन हमारे पास सीमित वक्त है, तो कार्य क्षेत्र वो चुने, वो एंटरप्राइज स्टार्ट करने का सोचें जिसको करने से आपको लगता है आपको मजा आएगा। और आपको बताऊं, मजा कब आता है? जब आपके एंटरप्राइज से, उस एंटरप्राइज से जुड़े लोगों को उस इकोसिस्टम में लाभ पहुंचे। वो एंटरप्राइज जिस सामाजिक सेटअप में खड़ा किया जाए, उस समाज को लाभ पहुंचे, उस राष्ट्र को लाभ पहुंचे। जो भी बड़े बड़े हॉलमार्क्स बिजनेस के क्षेत्र में हुए, ये उन लोगों ने स्थापित किए जिन्होंने हमेशा कुछ कंट्रीब्यूट करने का सोचा। जिस व्यक्ति ने google.com बनाया, उसने यह टारगेट नहीं रखा था कि वो इतने बिलियन डॉलर बनाना चाहता है। एक ही उद्देश्य था कि कोई सोल्यूशन देना चाहता है। जिसने uber.com बनाया, उबर जैसा एक प्लेटफॉर्म हमको दिया, जिसने लॉजिस्टिक्स को कितना आसान कर दिया। आज कितना आसान हो गया बड़े शहरों में, खासकर हमारे लिए, घर से ऑफिस जाना, ऑफिस से घर आना, पूरा का पूरा इस इकोसिस्टम को बदल के रख दिया। राइट? सो आपके पास इंसाइट होनी चाहिए, वो दूरदृष्टि होनी चाहिए कि जो एंटरप्राइज मैं बिल्ड कर रहा हूं, क्या इससे कुछ कंट्रीब्यूशन समाज को मिलेगा? चाणक्य ने भी इस विषय में बहुत अच्छा कहा था कि एंटरप्राइज तभी एंटरप्राइज कहलाता है अगर उस एंटरप्राइज से समाज में कुछ कंट्रीब्यूशन पहुंचता है। तो दोस्तों, अगर आप स्टेज 4 तक पहुंचना चाहते हैं, तो स्टार्टिंग से ध्यान रहे कि अपने एंटरप्राइज में वो कल्चर बिल्ड करें, वो वैल्यू सिस्टम लेकर आए, ऐसा प्रोडक्ट लाइन की तरफ आगे बढ़ें जो सस्टेनेबल हो, जिससे कि प्लेनेट को फायदा हो, जिससे कि मानवता को फायदा हो, और इस यात्रा में, इस प्रोसेस में रिवॉर्ड के रूप में आपको प्रॉफिट मिले। प्रॉफिट आपका अधिकार है। प्रॉफिट होगा तभी तो बिजनेस में आप स्केल अप कर पाएंगे। सो बिजनेस स्टार्टअप मस्ट बी अ लॉन्ग टर्म कॉन्सेप्ट। यू हैव टू पुट योर लाइफ इनटू इट, एंड दैट इज ओनली पॉसिबल if and only if there is substantial value in the concept behind that enterprise. So यहाँ पे टेक अवे दोस्तों आपके लिए देना चाहता हूँ। इनर इंजीनियरिंग नामक एक प्रोग्राम है जो सदगुरु जग्गी वासुदेव द्वारा डिजाइन किया गया है। विश्व भर में लाखों लोग, millions of individuals have taken benefit from this. आप भी इनर इंजीनियरिंग प्रोग्राम ऑनलाइन आप चाहें तो आप इसकी शुरुआत कर सकते हैं। और हमने कहा था इस वेबिनार में हम बात करेंगे हाउ टू ओवरकम अंडर परफॉर्मेंस सो दैट यू कैन रीच योर पीक परफॉर्मेंस पोटेंशियल। Here I repeat, and you can build on the context I could set already during the major part of this webinar, where I took you through the process of success and brought you to understand the stage 4 yoga. दोस्तों, humans exist in 4 dimensions. ये गाड़ी के 4 पहिए हैं: बॉडी, माइंड, इमोशंस और प्राण ऊर्जा, लाइफ एनर्जीज। अगर इंजन कितना भी सशक्त क्यों ना हो, लेकिन अगर ये चारों पहियों में अलाइनमेंट नहीं हो तो हम कामयाब नहीं हो सकते। तो वो प्राप्त करने के लिए एक ही जवाब है कि आप योगा करें। इन ऑर्डर टू अचीव अलाइनमेंट अमंगस्ट दीज 4 wheels of your human mechanism, there is one solution, and that is yoga. See, if you are interested in solace, मैं भूला नहीं हूं मैं कैसे भाषण दिया करता था। दोस्तों, सोच को बड़ा करो, अपने आप को शीशे के सामने खड़े करके अपने आप को ललकारो, खुद को कहो मौजूदा हालात बदलने होंगे, शहर की सबसे लंबी गाड़ी मैं लूंगा, ये पॉसिबल है, आई कैन डू इट, मैं करके दिखाऊंगा,
ऐसे करो, ऐसे करो। दोस्तों, ये नौटंकी है जो मैंने बहुत करी, लेकिन मंच से उतरने के बाद फीडबैक जब मुझे मिलता 6 माह के बाद भी, लोग शीशे के सामने ऐसे 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 करते करते नीचे आ गए, क्योंकि वह केवल एक पहिए में बदलाव लाने का प्रयास कर रहे थे। वो था विचार, कि सकारात्मक विचार करेंगे तो बढ़िया होगा। वो जिम जा रहे थे कि बॉडी फिट होगी तो मेहनत बेहतर कर पाएंगे, लेकिन ना जनाब, बॉडी माइंड इमोशन के साथ एनर्जीज का सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। योगा इज ऑल अबाउट एक्टिवेटिंग योर इनर एनर्जीज। इट इज लाइक दिस, आपके घर में एसी भी है, रेफ्रिजरेटर भी है, टेलीविजन भी है, सब कुछ है। इन तीनों को हम मान लेते हैं बॉडी, माइंड और इमोशन। लेकिन अगर जनाब इलेक्ट्रिसिटी ना हो, एनर्जी ना हो, तो किसी काम के नहीं। और अगर बिजली हो तो सही, लेकिन फ्लक्चुएशन हो, तब भी किसी काम के नहीं। रादर यह मशीनें खराब हो जाएंगी। योगा इज नॉट अबाउट ट्विस्टिंग योर बॉडी, बट इट इज ऑल अबाउट awakening your energy body so that there is no fluctuation and you arrive at a certain balance. और जनाब, बिजनेस में बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। जब साइकिल चलानी हमने सीखी थी, कितना डर लगता था, गिरने का भय होता था। लेकिन एक बार जब साइकिल चलानी हम सीख गए, सबसे पहली चीज जो हमारे अनुभव में थी वो थी बैलेंस, कि अब हम बैलेंस कर पाते हैं। और जितनी तेज साइकिल दौड़ाते थे उतना बैलेंस और बनता था। और तब आप हाथ छोड़कर भी बहुत सी शरारतें करते थे। ठीक उसी प्रकार बिजनेस के अंदर भी बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज दोस्तों, देखा आपने क्या हुआ होगा आखिर कैफे कॉफी डे के मालिक के साथ, कि उसने शायद 1200 करोड़ कमाए होंगे और अब नुकसान हो चुका होगा 900 करोड़ रुपए का। अच्छा, मान लिया 1150 करोड़ रुपए का। मैं टिप्पणी नहीं कर रहा, केवल इस संदर्भ को थोड़ा सा बिल्ड करने के लिए उदाहरण दे रहा हूं। माफी चाहता हूं आपसे और उनसे भी, लेकिन आप समझें बैलेंस। हमारे पास कितने उदाहरण हैं। अमिताभ बच्चन जी की दोबारा बात करता हूं, बॉलीवुड के शहंशाह बनने के बाद भी, सुपरस्टार बनने के बाद भी बैंक करप्ट हो गए थे। लेकिन छोटा सा उनको एक अपॉर्चुनिटी उनके सामने आई, केबीसी नामक एक धारावाहिक में उन्होंने होस्ट की भूमिका अदा करी और वापस से दोबारा शहंशाह बन गए। दोस्तों, कितने उदाहरण आप बिजनेस वर्ल्ड से आपको देखने को मिल सकते हैं, कि गिरे और उठ खड़े हुए, गिरे और बाउंस बैक कर दिया। बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम सब लोग योगा की तरफ आगे बढ़े, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को अपने जीवन में एक प्रोमिनेंट स्थान दें, तभी आपको जीवन की असली कामयाबी नसीब होगी, जो केवल गाड़ी बंगले पर निर्भर नहीं होगी, केवल आप पर निर्भर होगी। और एक बार आप आत्मनिर्भर हो गए तो गाड़ी बंगला क्रिएट करना बहुत आसान हो जाएगा। दोस्तों, अगर जीवन में कोई सेटबैक है, ये तो एक मौका है, अपॉर्चुनिटी है। विश्व में जितने भी महानतम नेता हमको मिले, किसी भी डायमेंशन में, पॉलिटिक्स हो या सामाजिक हो, बिजनेस हो या स्पोर्ट्स हो, आप देखें, आप स्पोर्ट्स पीपल की कहानियां पढ़ें। आप मूवी देखिए आपने, धोनी कितने स्ट्रगल से निकल के आगे आए थे। नेल्सन मंडेला को पढ़ो आप, महात्मा गांधी को पढ़ो आप, उनको सेटबैक मिला कि भारतीय की क्या इज्जत है कि ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया कुत्तों की तरह। इस सेटबैक ने उनको एक इम्पेटस दिया ग्रोथ के लिए। दोस्तों, अगर आपके पास जीवन में आज ऐसे सर्कमस्टांसेस हैं, उनको बहाना मत बनाओ खुद को कमजोर करने का। डू नॉट अलाउ योर circumstances to become a reason to slow down. Rather, these should become the reasons to give you the impetus to grow. इनको कारण बनाओ अपनी ग्रोथ का, इनको बहाना मत बनाओ रुक जाने का। दोस्तों, in life there are no problems, there are only situations. क्या मैं हमेशा से ऐसा था? नहीं, ऐसा नहीं था। मैं भी बहुत बार घबरा कर गिर जाता था और बहुत लंबे अरसे तक गिरा रहता था, बाउंस बैक करने की सोचता भी नहीं था। मैंने भी मेरे जीवन में कई डिप्रेसिव दिन देखे हैं। आपके साथ भी अगर ऐसा होता है या कोई
अननेचुरल नहीं है, लेकिन यह अननेचुरल होगा कि इस पर अगर आप काम ना करें। हम सभी को एक ईजीएस नामक एक सिस्टम मिला है, व्हाट इज रेफर टू एज इमोशनल गाइडेंस सिस्टम। अगर आपका ईजीएस सही काम कर रहा है तो आपको मालूम पड़ता रहता है कि आज आप मायूस हैं, आज आप बहुत खुश हैं, आज आप बहुत उत्साहित हैं, आज आप बहुत बहुत ज्यादा उत्साहित हैं, आज आप आलसी महसूस कर रहे हैं। अगर आप आलसी महसूस कर रहे हैं, मायूस महसूस कर रहे हैं, तो दरअसल ये उसी प्रकार आपको लेना होगा जिस प्रकार गाड़ी में एक मीटर रहता है, फ्यूल नीडल, जो आपको बताता है कि गाड़ी में कितना तेल बचा है। अगर गाड़ी रिजर्व में लग जाती है, मीटर आपको ऐसा बताता है, this does not bring you havoc, rather this gives you an impetus that you should better get your vehicle refueled with the next pumping station, next filling station. So now if you feel there is a setback and you are feeling low, it is high time you should refuel yourself to grow. How is this possible? There are various methodologies, technologies. मेरा प्रयास रहेगा, और अगर आप मौका देंगे आने वाले वेबिनार्स में या कुछ कोर्सेज हम नीति प्लेटफॉर्म पर लाने का प्रयास कर रहे हैं, जहां पर मैं आपके साथ रेगुलर एंगेजमेंट्स और क्रिएट कर पाऊं। और कुछ पार्टिसिपेंट्स यहाँ पर हाथ खड़ा कर रहे हैं। आई विश I could take your questions, but in the interest of time, we need to close the meeting, but I'm very much accessible. जिस लिंक से, जिस ईमेल से आप तक इस वेबिनार का लिंक पहुंचा है, आप वहां पर अपने प्रश्न पोस्ट कर सकते हैं जो आपने यहाँ पर प्रश्न डाले हैं। मैं इन प्रश्नों पर भी जरूर ध्यान दूंगा और यथा योग्य प्रयास करूंगा कि इनका जवाब आप तक दे पाऊं। थैंक यू सो मच फॉर योर पार्टिसिपेशन इन दिस वेबिनार एंड आई होप यू फाउंड दिस वेबिनार क्वाइट वैल्यूएबल. It made some meaning and it will definitely put you in a fast forward mode for your growth trajectory. I'm humbled, I'm thankful, I'm grateful. You allowed me, you gave me the opportunity where I could share my wisdom with you, and I look forward to deliver many more experiences of my life, and I'm sure those would bring some value to your life. If not much, even if I'm able to add an iota of value to your lives, I'll feel blessed. And thank you so much. You have been a fantastic, fantabulous audience. See you all soon. God bless you all.